Hello guys, welcome to the session. And this one is the very first session of quadratic equation. तो जितने भी लोग new हैं, you can start from here. But there are some concepts which are going to repeat, and those are the concepts which are related to a linear equation. So I would recommend you to go through the classes of recording. If you are right now in a session, it's okay. You can continue with the session because समझ में आ जाएगा क्या मैं पढ़ा रहा हूँ. But most of the thing जो ना समझे, I would recommend you once go through the basics of linear equation and special equation because those are the some questions and the thing which you should know initially. So yeah, let's start the session, today's session. So quadratic equation होता क्या है quadratic equation? सबसे पहली बात तो let's see what is the quadratic equation and why we say quadratic equation. Okay, so before we go ahead, this is something like you can go. If you want a recording of the all the sessions we have covered so far and whatever we're going to cover in future, you can simply go here in a prepb.in. Simply visit prepb.in and you will be find a course like this one, the course. You can enroll into it. Okay, and it is free of cost. So you will get all the session in a structured manner. Apart from this, if you don't want to enroll in any website, you can simply go to our YT channel, prepb, and you will find all the playlist and those are also structured in a structured way. Apart from this, if you want or you are finding some mentor, a personal mentor, you can look for this like opportunities or offerings. You can simply check out all the offerings in our website. Okay, apart from this, those who are joining a live session, for them the bonus for you guys, I'm going to create a group. Okay, in that group I will add all of the people who are joining me in my live classes or those who are joining live sessions of any educator. So there I will going to guide you for free of cost and we will take a group mentorship session a month. So I hope it will be helpful to all of you and I will create a group on 15th of July. So if you are watching the recording and want to join before the 15th of July. Let's come to the today's session. Quadratic equation. So what is the quadratic equation is? लाइक लास्ट सेशन में मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट अभी फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ. सी बेसिकली वी डिफाइन इक्वेशन बेस्ड ऑन देयर डिग्री, राइट. द डिग्री ऑफ लाइक a variable is define what is the nature of equation, or you can simply say is it a quadratic equation or linear equation, whatever. So degree is the thing which defines what is the like you can simply say highest degree, not only degree, the highest degree, और डिग्री इज नथिंग बट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. दिस इज व्हाट सिंपल. देखिए अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ डिग्री क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को डिग्री नहीं पता होगा. दोज हु आर न्यू दे आर लाइक व्हाट इज द डिग्री. ठीक है, डिग्री होता क्या है? डिग्री इज नथिंग बट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. ओके, सो लेट्स से अगर मेरे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है एंड दिस इज द व्हाट द हाईएस्ट पावर, लाइक लेट्स से अगर मेरा इक्वेशन ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x cube plus 4 is equal to 0. Now, what is degree? Degree क्या है? If I ask you to find a degree, you can simply say the highest power of variable. You can see only there is only one variable, that is x. So highest power of x well highest power क्या है? 3. So highest power अगर 3 है, 3 means what? This is nothing but cubic equation, right? Clear guys, ये cubic equation कैसे हुआ? Similarly, okay, sorry, I thought मैं mute पे हो गया था. Yeah. तो similarly अगर मैं ये कह रहा था, if the equation is given like this, x square plus 2x plus 2 is equal to 0. Now here you can see the highest power is 2, and when there is a highest power is 2, such equation we say quadratic equation, right? उस ऐसे equations को हम क्या कहते हैं? quadratic equation कहते हैं. If the equation, the power highest power of equation is 1, then we say linear equation. अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो बी से हम क्या कहते हैं? उसे बाई क्वाड्रेटिक.
Either we say biquadratic or we say quartic. So these are some special name to these equations. Apart from these, those are equation of the more than this, we can simply say higher degree, or let's say simply वैसे ही कुछ कहते हैं higher degree of equation से. And before we go ahead and deep down to the quadratic equation, there are some more basics. Like in last session, I haven't mentioned about the monomials, binomials, यार L है वो, ठीक है. And what we say trinomial. So what is this? And simply we say polynomial. ये होता क्या है? मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या है, व्हाट इज दिस? सो इफ वी सिंपली लुक, मोनोमियल्स नथिंग बट, अब इसका डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, तो अवॉइड दिस. डिग्री से इसका कुछ लेना देना नहीं है. वाई आई एम सेइंग डिग्री से कुछ लेना देना नहीं है? बिफोर भी, लेकिन चलो इससे पहले और एक चीज मैं करवा देता हूँ. मैंने आपको बताया था कि हम इक्वेशन किसे कहते हैं. इक्वेशन हम किसे कहते हैं? इक्वेशन हम उसे ही कहते हैं जब जब भी किसी वेरिएबल्स का एंड कांस्टेंट का कोई ऑपरेशन फॉर्म हो, देन वी से इक्वेशन. लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग. अगर मैंने एक वेरिएबल ले लिया x प्लस 2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. मैंने क्या किया यहाँ पे? मैंने वेरिएबल्स को और जो कांस्टेंट है, लेट्स से कांस्टेंट भी ऐड कर लो, चलो. ये तो बोलेंगे कांस्टेंट क्या है, इज इक्वल टू 0. मैंने क्या किया यहाँ पे? वेरिएबल्स को और जो भी कांस्टेंट्स है, इन सारे वैल्यूज को हमने ऑपरेशन में फॉर्म कर दिया. लाइक यहाँ पे यू कैन सी ऑपरेशन मीन्स वो किडनी उडनी वाला ऑपरेशन नहीं. यू कैन सी प्लस हियर, हियर मल्टीप्लाई. Okay, so these are the thing, nothing but operation. So we are performing mathematical operation here, and we're so if we add like a form or some kind of expression, this is like this. This is nothing but expression. ठीक है, इसे एक्सप्रेशन कहते हैं. सिर्फ मैं अगर इक्वल टू जीरो ना करूँ तो, when I make it equal to zero, when my expression is equal to something or equivalent to something, then it will form, we call equation. ठीक है. मतलब ये x माइनस प्लस 2x² प्लस 3, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो ये क्या है? एक्सप्रेशन है, राइट. अगर मैं इसे इक्वेट कर दूं किसी भी नंबर से या फिर किसी भी वैल्यू से, इक्वेट विथ एनी अदर इक्वेशन ऑल्सो, तो हम सॉरी एनी अदर एक्सप्रेशन ऑल्सो, लेट्स से यहाँ पे मैंने और एक एक्सप्रेशन से इक्वेट कर दिया. आई इक्वेटेड हिम विथ x+2 से. सो दिस इज नथिंग बट वी कॉल इक्वेशन. ये क्या बन गया? इक्वेशन बन गया. ओके, आई होप इट इज क्लियर. बहुत बेसिक है. आई एम स्टार्टिंग अगेन ऑफ बेसिक्स. आई हैव डाउट. क्या श्वेता, क्या डाउट है? टू लेट मी नो. ओके, इफ यू आर आस्किंग फॉर लास्ट सेशन डाउट, नो, मैंने अभी तक नहीं लिया लास्ट सेशन का डाउट. आई विल टेक दोज डाउट एट द एंड ऑफ द सेशन. ओके, अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक. सो या अगर ये इससे ये समझा आपको एक्सप्रेशन किसे कहते हैं. एक्सप्रेशन मैंने इसलिए समझा दिया बिकॉज यू हैव टू नो व्हाट इज एग्जैक्टली एक्सप्रेशन इज, बिकॉज व्हेन यू लर्न फंक्शन, सो फंक्शन में क्या होता है? एक्सप्रेशन का रोल होता है. फंक्शन इज इक्वल टू लाइक x² प्लस 3 ब्ला ब्ला ब्ला. सो फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सप्रेशन. ओके, जो एक्सप्रेशन होता है इसे ही हम फंक्शन में डिफाइन करते हैं, इसलिए that's मैंने समझा दिया कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन. सो होप इट इज क्लियर. एक्सप्रेशन पार्ट इज क्लियर. लेट्स गो अहेड. सो व्हेन एक्सप्रेशन इज equated with the other equation, other expression, or maybe other constant value, then we say that is nothing but a equation. And अगर ये इक्वेशन है, इक्वेशन में भी बहुत से पार्ट्स होते हैं. अगर मैं इक्वेशन तोड़ने बैठ जाऊँ, अगर मैं इसी इक्वेशन को अगर मैं तोड़ूं, लाइक x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? सॉरी, कितने लाइक टर्म्स दिख रहे हैं? ऑल्सो हियर वी कैन से टर्म्स. अगर मैं टर्म्स बोल रहा हूँ, इट्स मीन व्हाट? द टर्म्स इज नथिंग बट x², 2x, 3. दिस इज ऑल आर व्हाट? दिस कॉल बी टर्म्स. ओके, ये क्या होता है? टर्म्स. तो अगर किसी भी इक्वेशन में या फिर एक्सप्रेशन में एक टर्म है और सिंगल टर्म है, in any equation or expression, if there is a single term, let's say there is only x², then we call this kind of equation a monomial equation. Okay, and if
there is two terms. Let's say the equation or expression is like this type kind of thing. Okay, x square plus 2x. Then we say this is nothing but a binomial. If there is more than two term, or we can say three term, like this x square plus 2x plus 3, you can see here there is three term. x square एक टर्म हो गया, 2x एक टर्म हो गया, 3 एक टर्म हो गया. तो इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नथिंग बट अ ट्राइनोमियल. Similarly, if there are more than three terms, or you can say number of terms, we don't know, count or whatever, let's say x square plus 2x plus 3 plus x to the power 4 plus x to the power 5, or like let's say more than 4 हो गया ना, उसे हम सिंपली क्या कह देते हैं? हमें उसका नाम नहीं है, देयर इज नो स्पेशल नेम, दैट्स व्हाई वी सेड देम पॉलिनोमियल्स. होप इट इज क्लियर. सो गाइस, समझ में आ गया टर्म्स किसे कहते हैं? टर्म्स इज नथिंग बट लेट्स से 2 हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, और 3y हो गया. दिस इज अदर टर्म्स. एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं? एक्सप्रेशंस हो गया ये काइंड ऑफ थिंग लाइक 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और लेट्स से 2x स्क्वायर प्लस 3y. these are what? These are nothing but expressions. Equations किसे कहते हैं हम? Equation when we like when if the expressions are equal to some value or other expression, then we say that like a particular expression or the, what you can say, उस काइंड ऑफ थिंग को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं. लेट्स से यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 0, और 2x स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर. so these are nothing but a equation. hope it is clear. डिग्री भी पता चल गया, डिग्री किसे कहते हैं? हाईएस्ट पावर हो गया जिसके, राइट. अगर ये हो गया तो चलो आगे बढ़ते हैं. guys, you all are in a same boat, do let me know. yes yes, no no, जो भी है बता दो. if you have any doubt, do let me know. these are the very basic and but most important. क्योंकि क्या होता है ना, ओमेट्स में ये सारी चीज ज्यादा टेस्ट किया जाता है. कैट नहीं टेस्ट करेगा आपका ये. कैट भी टेस्ट कर लेता है कभी कभी, बट ओमेट्स विल टेस्ट मोर इन दिस काइंड ऑफ थिंग. इजी क्वेश्चन आएगा बट यू आर अनेबल टू सॉल्व बिकॉज यू डोंट नो द बेसिक. सो दैट्स व्हाई मैंने बोला बेसिक जो भी बचा है लेफ्ट आउट, वो सब भी कंप्लीट कर लेते हैं. ओके, इफ ये क्लियर है चलो बहुत बढ़िया है. अच्छा लगा सुन के, सॉरी पढ़ के. आगे बढ़ते हैं. आगे अगर मैं बढ़ूँ, अब चल क्वाड्रेटिक पे आते हैं. तो एज आई टोल्ड यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? सबसे पहले इसका जनरलाइज्ड फॉर्म देख लो. इसका जो जनरल फॉर्म रहता है, दिस इज लाइक समथिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर मैं लीनियर के लिए बात कर लूँ, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसा रहता है? दिस इज नथिंग बट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0. सिमिलरली, व्हेन इट कम टू क्यूबिक इक्वेशन, इसका जनरल फॉर्म अगर मैं पूछूं आपसे, हाउ यू कैन राइट? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0. एंड बाय क्वाड्रेटिक वो चलते रहता है. दीज आर सम जनरल फॉर्म्स एंड यू शुड नो. आप खुद भी बना सकते हो. देखो यहाँ पे क्या था, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, राइट. यहाँ पे क्या हो गया? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी. सिमिलरली यहाँ पे क्यूबिक में ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी. तो हम ये पढ़ेंगे हायर ऑर्डर में भी, बहुत सारे क्वेश्चंस है विच आर रिलेटेड टू क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक. सो वी लर्न दोज थिंग इन द नेक्स्ट सेशन और अपकमिंग डेज. अभी तो टाइम है, अभी तो क्वाड्रेटिक पढ़ना है. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो जिसे भी लगता है कि हमें क्वांट लाइक अलजेब्रा छोड़ के जाना चाहिए, तो मैं उनसे हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि पढ़ लो गाइस. बहुत टाइम है अभी भी. ठीक है, यू हैव इनफ टाइम, यू कैन गो थ्रू द अलजेब्रा वंस. एटलीस्ट एक बार पढ़ लो, किसी से भी पढ़ लो बट एक बार पढ़ लो. एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, बिकॉज यहाँ से आपको आराम से अलजेब्रा में जो पूरे, अगर अलजेब्रा के टॉपिक की बात करूँ तो लास्ट ईयर देर वॉज 10 to 12 क्वेश्चन फ्रॉम अलजेब्रा इन ईच स्लॉट. दैट्स वाई वुड रिकमेंड यू कि पढ़ लो. ठीक है, छोड़ो मत, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेट्स कम टू क्वाड्रेटिक. यहाँ से भी एक दो दो तीन को, मतलब दो क्वेश्चन तो मान के चलो यार, दो तो आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से. लास्ट ईयर भी थे ही दो.
दिस इज द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ये है। अब इसमें देख लो, एज आई टोल्ड यू, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कोफिशिएंट of x square, can anyone please answer this? What is the coefficient of x square? A. Great, Nidhi. What if the equation is like this? 2x square minus 3x plus 4 is equal to 0. Now what is the coefficient of x square? 2. Okay. So जिन्हें नहीं समझ रहा है, कोफिशिएंट हम कैसे कहते हैं? जो भी वेरिएबल के आगे कांस्टेंट वैल्यू रहता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। So here you can see the constant value is a. Here you can see the constant value of is 2. Similarly, if I ask you coefficient of x, in this case, what is the coefficient of x? 3. ओके, अंशु 3 कह रहा है, निधि भी 3 कह रही है। चलो बढ़िया है, सब एकदम बढ़िया से समझ रहा है। बाकी ओके ना, अब अंशु को समझ में आया कि या मैं गलत बोला, सॉरी बोली। सो या only 3 is not a correct answer. The correct answer is -3. You can always take their like a sign or the nature of the number. ठीक है, माइनस मत भूलो, डोंट फॉरगेट अ माइनस साइन। हियर यू कैन सी, तो आप बोलेंगे 2 क्या क्या प्लस क्यों नहीं लगाया? हम प्लस नहीं लगाते गाइस, हम माइनस लगाते हैं। ओके, इफ देर इज अ माइनस यू कैन सिंपली ऐड माइनस with the constant number. These are the coefficient. If I ask you coefficient of x to the power 0, what is the coefficient? And I ask you what is the constant term in this equation? Coefficient of x to the power 0 क्या है? Okay, Avneet is answering 4. Others answering 1. 4 or 1? 4 या 1? ये सब वही है जिन्होंने फर्स्ट सेशन नहीं देखा, राइट गाइस? मैंने सबसे पहले सेशन में ही करवाया था ये। ओके, सो सी हियर, इसे नहीं पता, द आंसर इज 4। हियर ऑल्सो कांस्टेंट टर्म इज 4। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ, तो अगर कांस्टेंट टर्म की जब मैं बात कर रहा हूँ, आई एम सेइंग कांस्टेंट टर्म। सो कांस्टेंट टर्म इज नथिंग बट दिस वैल्यू, ये सी दिख रहा है यहाँ पे, सी इज नथिंग बट अ कांस्टेंट टर्म। इसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म कहते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की जब मैं बात करूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 4। 4 इज द कांस्टेंट टर्म। लेट्स से अगर यहाँ पे -4 होता तो आप क्या कहते हैं? -4 इज द कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म तो क्लियर है, होप इट इज क्लियर। नाउ व्हाट इज दिस? व्हाट द हेल दिस वन? ये क्या है? अभी तक तो कांस्टेंट ही पढ़ा था, ये किसी ने पूछा नहीं। सो दिस इज नथिंग बट अ कांस्टेंट टर्म। x to the power 0 is nothing but 1, right? x to the power 0 is nothing but 1. I am asking coefficient। ये कंटिन्यू कर लो भाई यहाँ पे, ठीक है? कैसे बनाते थे वो, इसको मैं भूल गया। दिस पार्ट इज कंटिन्यूएशन, ठीक है? Coefficient of x to the power 0. I'm asking coefficient of x to the power 0. You are answering x to the power 0 equal to 1. x to the power 0 equal to तो 1 है, बट आई एम आस्किंग कोफिशिएंट। अगर यहाँ कुछ नहीं है, आई वुड से कि 4 के साथ वहां पे 1 भी होगा ही। एंड 1 इज व्हाट? 1 इज नथिंग बट x to the power 0. सो आई कैन सिंपली से दैट 4 into x to the power 0 इज नथिंग बट 0। इक्वेशन तो यही हो गया ना, 2x square minus 3x plus 4 into x to the power 0. You can see the degree in descending order, highest then lowest then सबसे छोटा। दिख रहा? दिख रहा? तो x to the power 0 का अगर कोफिशिएंट पूछूं तो क्या है? व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ऑप्शन 4 नॉट 1। एंड यू आर आंसरिंग x to the power 0 की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ x to the power 1। सॉरी, वैल्यू ऑफ x to the power 0 इज 1। सो ऑल्सो रिमेम्बर, अगर किसी का पावर 0 हो जाए, किसी का भी पावर 0 हो जाए, एनी वेरिएबल, लेट्स से आई एम द पर्सन, ठीक है? माई पावर बिकम अ 0। if my power becomes 0, I am nothing but a single one. Okay, if the power of a to the power 0 is nothing but 1, y to the power 0 is nothing but 1. So
किसी का भी अगर पावर जीरो हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू इक्वल टू वन हो जाती है। होप इट इज क्लियर। इट विल बी हेल्पफुल टू यू इन लॉग। जब हम लॉग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत बार इसका यूज करना पड़ेगा। अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। गिव मी अ मोमेंट गाइस। कुछ डाउट हो तो पूछो मुझसे। कुछ डाउट नहीं है। देर आर न्यू फेजेस इन द क्लास। माइक एंड ए। माइक एंड ए। माइक, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? बता सकते हो आप कौन हो? अच्छा नाम बताओ यार। और यू आर ज्वाइनिंग फ्रॉम यूएस और फॉरेन, लाइक अ कंट्री? माइक। चलो ये अगर क्लियर है, लेट्स कम टू द लिटिल बिट मोर, और इसके अंदर डीप डाउन करते हैं। लेट्स डीप डाइव इनटू अ क्वालिटी इक्वेशन। अरे यार क्या मिटा दिया। So the coefficient, if the coefficient part is clear to all of you, we'll go ahead with some more detail. Let's say now, as I told you, general form is this. तो अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, अब मैं आपको सीधा फॉर्मूला दे दूंगा हाथ में। दिस इज द फॉर्मूला टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सो देर आर टू वेज टू सॉल्व दिस, लाइक quadratic इक्वेशन। ठीक है, दो तरीके quadratic इक्वेशन सॉल्व करने के, एंड दोनों मैं आपको बताऊंगा। द फर्स्ट वन इज फॉर्मूला मेथड, सेकेंड इज फैक्टराइजेशन। ओके, आई थिंक ये एट्थ में पढ़ा होगा आपने। यू हैव मस्ट read this kind of thing in eighth class or ninth class might be, और टेंथ में तो पढ़ा ही होगा पक्का पक्का। So there are two ways to solve the equations, and I'm solving means what? Solving the equation is mean you have to find the value of x. Find the value of x. So solve अगर कोई करने के लिए बोल रहा quadratic equation को, तो उसको solve क्या करना है? Don't ask this question. You must be solving and finding the value of x. मनीष है? अरे मनीष भाई, ऐसा माइक वाइक नाम रख दिया आपने। मैं सोच रहा था मैं खरीद ही लूँ फिर माइक। वो आपने नाम रख ही लिया है तो कोई नहीं, चलो आगे पढ़ते हैं। चलो बढ़िया है, जल्दी से हो तो। ओके, सो फॉर्मूला मेथड, लेट्स कम टू फर्स्ट मेथड। फॉर्मूला मेथड इज वेरी सिंपल। मैं सीधे से फॉर्मूला बता दूंगा, वही है। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ से आपको एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी। अब बोलेंगे यार फॉर्मूला तो एक दिया, दो वैल्यू कैसे निकल जाएंगी? लेट्स सी, लेट्स ब्रेक डाउन इट। यहाँ दिख रहा है आपको प्लस माइनस। If you are able to see these two value like a plus minus sign here, it means the one of the value of x is minus b plus under root of b square minus 4ac upon 2a, and the second value should be nothing but minus b plus यहाँ पे हो गया तो बचा क्या, माइनस अंडर रूट ऑफ b square minus 4ac upon 2a। होप इट इज क्लियर। अब बोलेंगे फैक्टराइजेशन क्या है। सो फैक्टराइजेशन, ये समझा पहले? ये बताओ, फॉर्मूला समझा? ये याद कर लो, कहीं पे काम आ जाए तो ठीक, नहीं तो ज्यादातर हमें क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। यू कैन रिमेम्बर द फॉर्म दिस फॉर्मूला इजी टू वे, मतलब if you don't understood and unable to solve by factorizing the equation, you can simply use this formula, you will get a value for x. But this is sometime like calculative, that's why I don't prefer this. But यहाँ कहीं कहीं पे लग जाता है। We mostly prefer this, like a factorization method to solve all the questions. Okay, but you should know the formula is, क्या पता कब कहाँ काम आ जाए। This is the formula. The factorization method you will learn when we will solve a question. Hope it is clear. फैक्टराइजेशन में सिखाऊंगा जब हम सॉल्व करेंगे तब। और माइट बी यू नो मोस्ट ऑफ द फैक्टराइजेशन पार्ट, टेंथ में पढ़ाई होगा। इफ दिस इज क्लियर, लेट्स गो अहेड।
अब जैसे मैंने फॉर्मूला में लिखा, इफ यू सी दिस फॉर्मूला, व्हाट आई मेंशन, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. नाउ देर इज वन मोर नेम फॉर दिस पार्ट. ये दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं डिटर्मिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, आई एम राइट. कंफ्यूजन होता है डिस्क्रिमिनेंट और डिटर्मिनेंट में. वी कॉल दिस लाइक दिस वैल्यू लाइक बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट. और वी रिप्रेजेंट इट बाय डी और बाय triangle sign, you can say del. Okay, these are the sign for the discriminant. B square minus 4ac, इसे हम क्या कहते हैं? Discriminant. Why I am teaching this? Because there are some important thing, that's why teaching. तो मेरे को फालतू में थोड़ी शौक है गाइस कि ये बताओ. ओके, यहाँ तक समझा डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट है. डिटर्मिनेंट अलग होता है. ओके, एक डिटर्मिनेंट होता है, ये मैट्रिक्स में आता है, यहाँ पे नहीं है. ये है डिस्क्रिमिनेंट. ओके, चलो. अब डिस्क्रिमिनेंट पे आ ही गए हैं, तो काम क्या है भाई, इसका यूज क्या है वो भी बता दो बोलना. तो वी नो देयर इज आवर इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. एंड we solve this equation to find the value of x. We find the value of x. Now to know the value of this like x, what is the nature of this value? So to know this we will find using this. मतलब मुझे पता चल जाएगा यहाँ से कि x की वैल्यू कैसे आने वाली है. x की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, x की वैल्यू नेगेटिव आएंगी. क्या ये पता चलेगा? पूछो तो सही. नहीं, ये नहीं पता चलेगा x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव. वो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा. यहाँ से आपको पता चलेगा. फ्रॉम हियर यू विल लर्न द वैल्यू ऑफ x आर रियल or it is imaginary, or it is like you can simply say or it is rational or it is irrational. ये सब कुछ जो आपको पता चलेगा वो इस डिस्क्रिमिनेंट से पता चल सकता है. by solving this you will get the value कि that the my equation the value of x is real or imaginary or rational or irrational. You can find this kind of thing, the nature of equation, similarly solving discriminant. So nature of quadratic equation, this is the new part. यहाँ से हम कुछ और कर रहे हैं. देखो यार, इसका बेसिक कुछ नहीं है, यही सब है. सो इफ यू गो थ्रू ऑल दिस यू नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये सब नहीं पता है तो फिर कुछ नहीं कह सकते. एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग. ओके, तो नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब नेचर कैसे पता कर पाए? तो ये सिंपल सा एक तरीका है. इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट नो बता सकते हो कैसे पता करेंगे? किसी को आइडिया है? क्या हुआ भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? नो वन. किसी ने पढ़ा ही नहीं है क्या टॉपिक रूट्स? ओके, व्हाट इज द रूट्स? रूट्स क्या होता है? श्वेता, व्हाट इज द रूट्स? It satisfy the equation. Okay, Gautman, what satisfy the equation? अरे भाई क्या हो गया? ऐसे क्यों ठंडे क्यों पड़ गए सब लोग? अच्छा है मैंने ग्राफ अभी पढ़ाया नहीं. ग्राफ पढ़ाऊंगा तो फिर और बोलेंगे ये क्या हवा कर दिया आपने. वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. क्यों? वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. पॉलिनोमियल इक्वल टू 0. अरे भाई चलो चलो मैं ही करवाता हूँ. नो, नो वरीज. रुक जाओ रुक जाओ, थम जाओ. थम जाओ थम जाओ.
सो नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने तो बता दिया ना कि हम नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नथिंग बट, आपने जो बोला है सारे पॉइंटर्स सही है, ऐसा इनकी गलत है. Roots, what is a roots? The simple thing is sometimes people are confused. What is a roots? Roots is nothing but value of x. Roots is nothing but value of x. Okay guys, hope it is clear. Roots क्या होता है? Values जो x की होती है उसके हम roots कहते हैं. And to know the nature of roots or the nature of quadratic equation, we can simply use discriminant. तो यहाँ पे कुछ conditions है. Like I see Gautam writing polynomials equal to zero and all. Okay. So let's see क्या होता है. तो अगर मुझे एक इक्वेशन दिया है 2x² प्लस 3x प्लस 4, and the examiner asked me, can you please let me know what is the if the value of x is real, imaginary, rational or irrational, how could I answer it? And what I can say, I can say okay, I will let me solve the equation. Okay, then I have to solve the equation and find the value of x. So don't you think it is a very long process to or long procedure to solve everything, then know what is the roots are real or imaginary or irrational or rational? So we don't have to do lots of work here. We can simply, what we can do, we can simply do find the nature of quadratic equation by simply finding the value of discriminant. If if the value of d is equal to 0, okay, there are three possibilities. Might be the first one is the value of d is less than 0, let's say is less than 0. Second was possibility the value of d is equal to 0. And third possibility is value of d is greater than 0. These are the possibility because you can see here is the minus sign. So I am solving, मैं overview दे रहा हूँ. ठीक है, हो क्या सकता है, what is the possibility? या तो d equal to less than 0 होगा, और it is equal to 0, और it is greater than 0. मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यही मैं बता सकता हूँ, या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, और इक्वल टू 0 है, राइट? If I find this thing, I know what is the nature of the equation. If d is less than 0, if d is less than 0, it means value is negative. You can simply say value is negative, then only the d is less than 0. In that, in this scenario, my equation or the value or roots, the nature of roots is nothing but, okay, nature of quadratic equation mat karo, nature of roots kar lo. This is my mistake, मैं गलत लिख दिया, nature of roots कहते हैं. Okay, so from here I will get my roots are unequal, my roots are unequal and imaginary. ठीक है, ये क्यों हो रहा है इमेजिनरी? देखो, अगर ये वैल्यू डी की वैल्यू अगर आ गई माइनस, डी की वैल्यू आ गई -4, ओके, नाउ इन दिस केस, और लेट से -4 नहीं -2 आ गया, इस केस में क्या होगा? जब मैं इसको इक्वेशन में डालूंगा, ये वाली इक्वेशन में, यू कैन सी दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में अगर मैं डालूं तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगा √(-2), राइट गाइस? सो always remember, under root, the value of under root of -1 is equal to I, is equal to I is nothing but imaginary. तो सिंपली जितनी वैल्यूज अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव में है तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नथिंग बट इमेजिनरी. सो अगर नेगेटिव है, लेस देन 0 है, देन वी कैन सिंपली से माय रूट्स आर अनइक्वल एंड इट इज इमेजिनरी. ओके, रूट्स जो है वो अनइक्वल है, द बोथ आर द डिफरेंट रूट्स एंड दोज आर इमेजिनरी. सेकंड, व्हेन इट इज इक्वल, जब ये इक्वल है मीन्स व्हाट? My roots are also equal. When it is equal to 0, it means my roots are also equal and real. My roots are equal and real. Hope it is clear. Now here, if d is greater than 0, तो यहाँ पे दो केस बनते हैं. You can see here two cases. Let's see, पहले यहाँ पे अगर d is greater than 0 है, तो in this case, my roots are unequal and real.
रूट्स भले ही अनइक्वल है लेकिन वो कैसे है, वो रियल है। समझ में आया या नहीं आया? रूट्स कैसे, देयर आर रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। यहाँ पे रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो भाई। ठीक है, ये बहुत काम आने वाला है पूरे के पूरे आपके अलजेब्रा में, बहुत। आपकी आपका इसका नीड जो है क्वाड्रेटिक में भी है। यू विल लाइक इसका नीड आपको इनइक्वालिटी में भी आएगा, इसका नीड आपको फंक्शंस में आएगा, इसका नीड ग्राफ में आएगा। हर जगह ये काम आएगा। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग वेरी वेल। और लॉन्ग वे में थोड़ा लंबा लगेगा यहाँ पे। You might think that he is wasting my time. So yes, I am wasting, might be. If you know, if you don't know, then it is really very helpful to you. ठीक है, अगर आपको पता है तो वेस्ट कर रहा हूँ मैं टाइम, बट नहीं पता है तो इट इज रियली गोइंग टू वेरी हेल्पफुल टू यू। नाउ हियर यू कैन सी, एज आई टोल्ड यू, एक और यहाँ पे है। अब आपने इतना कुछ तो बता दिया, यू मस्ट आस्क। चलो ये तो हो गया, ये भी हो गया। रियल का आपने बता दिया, इमेजिनरी बता दिया। ये दोनों कहाँ चले गए? रैशनल इरेशनल कहाँ चले गए? So rational and irrational. What is the rational? What is irrational? आपको पता है रैशनल किसे कहते हैं? चलो मैं बता देता हूँ। रैशनल इज नथिंग बट दोज आर द वैल्यूज which you can easily get like a 2 3 4 5 6 and माइन जो भी माइनस में भी हो जो भी, these are the value we call rational। इसे हम क्या कहते हैं? रैशनल। इरेशनल, अब ये रैशनल कैसे आया है? ओके चलो और अच्छे से डीपली मैं समझाता हूँ रैशनल क्यों कहते हैं उसे। जान लो, ये भी काम आएगा। सी, अगर मैंने ऐसे लिख दिया √4, if I write √8, if I write √16, can you solve this? What is the value of √4? No one। भैया रूट नहीं आता क्या? भूल गए क्या? The value of √4 is 2। What is the value of √16? You can answer it easily. It is nothing but 4, or you can simply say plus minus 2, or you can simply say plus minus 2, 4। कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस में। If I ask you what is the value of √8, now it is a hectic, because here I will get a value in a pointers, right? It is the something around what we say, 2 point, or yeah, 2.9 blah blah blah, ऐसा कुछ आएगा। if the value of rooted is something this, पॉइंट्स में आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, पॉइंट्स में तो हमें चाहिए नहीं, बिकॉज आई अर्लियर टोल्ड यू। तो ऐसे केस में क्या होता है? यही सब है भाई। these are the values which we call are irrational। got it? These are the values which we call irrational, and these are the values which we call rational। hope it is clear। मतलब रूट के अंदर जाने के बाद अगर किसी का वैल्यू नहीं आया, लेट्स से √15, दिस इज रैशनल और इरेशनल? डू लेट मी नो। चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ, आई लिखो, आर लिखते जाओ, चलो। रैशनल इरेशनल, फास्ट क्विक। इरेशनल, ओके। माइक सेइंग इरेशनल, अनुशु इरेशनल, ओके। अवनीत इरेशनल, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? रैशनल इरेशनल? रैशनल और इरेशनल? रैशनल, ओके। गौतमन सिंह रैशनल, अवनीत रैशनल, रैशनल, ओके ग्रेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? irrational, 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 great great guys, great। hope you understood what is rational, what is irrational। तो भाई यही काम का था। बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ कि रैशनल किसे कहते हैं, इरेशनल किसे कहते हैं। इसलिए वो सोचा याद करवा दो आपको भी। सो नाउ हियर, इन दिस केस, in this case there is two possibilities. One, the value of d which may be greater than 0, you can say, sorry, must be greater than 0, but there is possibility, that the value of d is equal to what? Is equal to the numbers like
1 4 and 16 25. These are the number. If these are the numbers there, or we can simply say d की जो वैल्यू है, this is nothing but square of a number, square of number, right? Then in that scenario, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर हमें गिवन है, d की वैल्यू अगर किसी नंबर की स्क्वायर आ गई है, in that scenario we can simply say my equation is unequal, real and rational. If the value of d is not equal to square of a number, it is something like this: 2 3 5 and blah 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 things. Okay, so in this case we can simply say like the value of d is like, or the roots, nature of roots are unequal, real and irrational. चलो भाई, यही था, खत्म हो गया, इतना ही था. ओके टाइगर, यू जस्ट स्टार्टेड. नो वरी, नो वरीज. अब मैं वापस तो नहीं करवा सकता हूँ ये, बट अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं तो व्हाट यू कैन डू, सिंपली वॉच रिकॉर्डिंग ऑफ दिस पार्ट. यहाँ तक का सारे बेसिक हमने कवर कर लिए ऑलरेडी, मतलब जो इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं रिलेटेड टू क्वालिटी. अब जो हम करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन टाइप्स. देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. कोई फालतू क्वेश्चन नहीं, ओनली काम के क्वेश्चन. फालतू क्वेश्चन लाइक अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं भाई, जो आता ही नहीं उसे क्यों करना. ठीक है, अब ये अगर आ गया है तो चलो, तो पहला क्वेश्चन करके दिखाओ. हाउ कुड यू फाइंड लाइक द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर द रैशनल, कॉम्प्लेक्स, रियल और इरेशनल. इट इज आस्किंग देम टू यू. नाउ सिंपली कॉम्प्लेक्स, अभी देखो अब एक नया वर्ड आ गया. अब बोले कॉम्प्लेक्स क्या है. कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट इमेजिनरी. रिमेंबर, मैंने ऊपर कॉम्प्लेक्स करके नहीं बताया, बट फॉर नाउ रिमेंबर, कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, इमेजिनरी वाले को ही कहते हैं. होप इट इज क्लियर. वो टाइगर, टाइगर स्टाफ. भाई नाम क्या है भाई, ओरिजिनल नाम बताओ यार. टाइगर स्टाफ, टाइगर श्रॉफ सुना है मैंने भाई, टाइगर स्टाफ आ गया आप. ओके, कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट इमेजिनरी. ओके, बी इज द आंसर. सूरज सिंह. ओ सूरज, ग्रेट ग्रेट, गुड नेम. व्हाट यू कैन डू, सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ डी. व्हाट इज डी? डी इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसकी वैल्यू आपको निकालनी है. ऊपर भी 4ac लिखा ना कि 2ac लिख दिया मैंने, आदत से मजबूर होगा, इसको कुछ भी लिख देता कभी कभी. राइट किया, तो बी स्क्वायर नथिंग बट बी इज व्हाट, -12 माइनस 4 टाइम ऑफ ए की वैल्यू क्या है 4, सी की वैल्यू क्या है 9. नाउ द like square of -12 is nothing but 144 minus 4 4 the 16, 16 into 9 the 16 9 the what you will get 16 9 the 16 9 the 324 होता है क्या, रुक जा. 16 10 का तो 160 होता है, तो 9 का इतना कैसे हो गया, 144 होगा ना. 144 नहीं होगा 16 9 का. भाई क्या कर रहे हो. इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा, क्या आंसर, डी इज इक्वल टू जीरो. भाई क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन सही करो. 16 9 से 144 होता है, या क्यों 324 को ही बोल रहा यार. लॉजिक लगाओ, 16 10 जा ही 16 10 जा ही 160 होता है, तो 9 जा 324 कहाँ से होगा भाई.
कैलकुलेशन आराम से करो, कोई मतलब जल्दबाजी में गलत मत करो। ठीक है। Anshu is saying d is equal to -12. How is it possible? यार -12 का स्क्वायर है। -12 का स्क्वायर, स्क्वायर से जब होता है ना तो साइन, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। -12 का स्क्वायर मीन्स नथिंग बट -12 इंटू -12, माइनस माइनस प्लस, एट द एंड यू हैव टू फाइंड 12 का स्क्वायर, इट इज नथिंग बट 144। हाउ d is equal to -12? 144 -156। यार 156 कैसे आएगा, बट डू लेट मी नो हाउ 156। 4 इंटू ए। चलो यार 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, आप लोग रुक जाओ। सच में यार। 4x² -12x + 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयर इट विद द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax² + 2x, sorry bx + c is equal to 0। now when you compare here you will get a is equal to 4। कंपेयर करो दोनों को, b क्या आ रहा, b is nothing but -12, c is equal to 9। now put this in this equation, like d is equal to b square minus 4ac। b, what is the value of b? -12, इसका स्क्वायर, -4, what is the value of a? Value of a is nothing but 4। what is the value of c? The value of c is 9। 12 का स्क्वायर 144, -4 4 the 16, 16 4 the 144, sorry 16 9 the 144, it is equal to 0। तो बहुत टाइम है भाई, 2 बार हो सकती है प्रिपरेशन। टुडे जून मंथ चल रहा है, ठीक है। जून छोड़ दो, जुलाई से भी करोगे तो 2 बार प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है। जुलाई से भी करोगे तो 2 बार हो जाएंगी प्रिपरेशन, बहुत टाइम है। हाँ तो वो गलती कैसे हो रही है, 156 कहाँ से आ रहा है भाई? स्टिल जॉब है तो एक बार तो कर ही लूंगा यार प्रिपेयर। 3 to 4 hours इज मोर देन इनफ फ्रॉम नाउ। 3 to 4 hour डेडिकेटेड, ऐसा नहीं रैंडम क्वेश्चन सॉल्विंग, नो, रैंडम क्वेश्चन सॉल्विंग भी नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी उठाए कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं। यू मस्ट नो व्हाट एग्जैक्टली सॉल्व व्हाट, एक मटेरियल इज नेसेसरी, जो आप फॉलो कर रहे हैं हर चीज नेसेसरी है। ठीक है। तो आराम से कर सकते हो। रैंडम सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं होगा। यू हैव टू मेक अ गुड स्ट्रेटजी, लाइक गुड प्लानिंग फॉर प्रिपरेशन, सारे टॉपिक्स जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसे कवर करने के लिए। क्लियर हुआ ये जीरो वाला पार्ट? अगर ये क्लियर तो लेट्स सॉल्व दिस वन। लेट्स सी कितने लोग कर पा रहे हैं। गिविंग यू 2 minutes, यू हैव 2 minutes, सॉल्व इट। Okay, so someone is saying A, someone C, A, C, A, C, A, C, still confusion। D, D भी आ गया, गजब। A, C, D, बस B बचा है, कोई B भी बोल दो, B बोल दो यार। अब तो बोल ही दो। A आ रहा है अब माइक का। ठीक है। Simply when you compare it with the general form of equation, what is general form of equation? ax² plus bx plus c is equal to 0। इससे कंपेयर करेंगे तो you will get the value of a is nothing but 6, value of b is nothing but -17, value of c is nothing but 12, right? यही मिलेगा आपको वैल्यू। ऑल्सो you have to find the nature of root। simply what you can do, you have to find a d is equal to b square minus 4ac। b square, what is b? My b is -17, इसका square minus 4 time of a। The value of a should be nothing but 6 into value of c is 12। if you square of 17, if you know square of 17, तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कर लो भाई ऐसे, 17 into 17, कोई बुराई नहीं है, बट अच्छा होगा अगर आपको याद हो। एटलीस्ट 20 तक तो याद होना चाहिए। ठीक है। एंड 4 into 4 6 24, 24 into 12,
24 into 12 is, रुक जा भाई, 24 into 12, 12 फोर ज़ा 48, 48 का 8, कैरिंग 4, 12 टू ज़ा 24, 24 and 4, 288. Yeah, here you will get a value of this 1. ठीक है, 1 मिला। किसी का कुछ और है? So the value of d is 1. d की वैल्यू 1 है। 1 कैसा है? सबसे पहले तो here, from here you can see my d is greater than 0, right? So if I can see my options, in my option I have to find a real value. Okay, real and, okay, एक मिनट, रियल एंड इक्वल तो, अरे यार, शिट शिट शिट। अच्छा, फिर भी तो ठीक है, फिर भी तो ठीक है। डू यू गाइस, जो दोज हु आर आंसरिंग सी, सी कैसे होगा भाई? रियल है, बट इज दिस इक्वल? क्या ये इक्वल है? इक्वल कब होता है? इक्वल देखिए केस में होता है व्हेन डी इज इक्वल टू 0, देन ओनली माय रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। अरे यार, डी जब इक्वल टू 0 होगा तभी तो रूट्स इक्वल होगा, तो ये, बट ये तो इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स ये तो होगा नहीं, इस लेट्स ऑप्शन सी इज नॉट माय आंसर। इधर अनइक्वल वाला होगा या फिर ये होगा। क्या कॉम्प्लेक्स आंसर है? इज माई वैल्यू इज नेगेटिव? नो। इफ नॉट नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स आंसर नहीं होगा। सो नाउ देर इज टू ऑप्शन लेफ्ट, one is rational or second one is irrational. So which one should I mark? You can simply see one is the square of one is the square of one. It means the value is square value. अगर square value तो कैसा है ये? It is a rational. कैसा है ये? Rational. So you can simply mark option A to be your answer. Hope it is clear. तो जिसका वैल्यू C और D आ रहा था, तो गलती समझ में आ गई होगी। लेट्स गो अहेड। तो ऐसे कुछ और क्वेश्चंस है आपके होमवर्क के लिए, यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस। ठीक है, ट्राई कर लेना। नाउ लेट्स कम हियर, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब मैंने इसके स्पेसिफिक यहाँ पे बना के रखा है। कैसे निकालेंगे? फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। नाउ सिंपली लेट्स सॉल्व दिस वन। तो वन मेथड इज, यू नो ऑलरेडी, फॉर्मूले में सीधा डाल दो, आंसर आ जाएगा, राइट? एक्स की वैल्यू सीधा यहाँ पे डाल दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सीधा डालो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये तो आपके लिए ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, बट मैं ये नहीं करूंगा। नाउ आई एम गोइंग टू डू अ फैक्टराइजेशन। सो फ्रॉम हियर लेट्स सॉल्व विथ दिस क्वेश्चन विथ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का रूल है सिंपली, you have to check the coefficient of x and the constant term. What is the coefficient of x? Sorry, x square, not x. What is the coefficient of x square? अरे अंशु, कहाँ आगे चले गए? यहाँ पे आओ पहले, रुको जरा, सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है? What is the coefficient of x square? If you see, is it visible? No. Still, there is something which is not visible, but it is there. Is 1. So coefficient of x square you can see 1. Here you can see constant is 15. So what you can do simply, the step one is multiply coefficient of x square into the constant number. What you will get? Simply you will get a 15. हाँ जी निधि जी, यही है मिड पॉइंट ब्रेकिंग। पहले स्टेप पे तो चलो, स्टेप वाइज आते हैं। बाकी आपको आता है तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता उनके लिए है ये। ठीक है, तो थोड़ा रुक जाए, सब्र कर लीजिए, एक बार समझा दे लीजिए। स्टेप वन, व्हाट यू हैव टू डू सिंपली multiply the coefficient of x square into the constant term. Constant term means the coefficient of x to the power 0. You can see here 15 is constant and this is the coefficient of x square. So I simply multiplied 1 into 15, which is I will get 15. Now in my step 2,
I have to break down the 15 so that in such a way so that my value should be equal to minus 8. Well, the sum of my value should be equal to minus 8. I have to break down the 15 in such a way so that my sum of the value, let's say here I will get a, here I will get a b. So the sum of the my a b plus b is equal to value of the coefficient of x, which must be equal to coefficient of x. होप इट इज क्लियर। समझ रहे स्टेप क्या बनाते जा रहा हूँ? स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है। Now once you get your step 1 or 2, you have to now go for step 3. Step 3 is what? Step 3 is very simple. Whatever value you will get a and b from your equation, okay, let's say एक मिनट स्टेप वाइज मैं बता ही रहा हूँ, तो जनरल फॉर्म में कर लेते इसको। नॉट इन दिस इक्वेशन, लेट्स मेक इट जनरलाइज सो दैट आपको समझ में आ जाए। रटना नहीं है, स्टेप्स को समझना है सिर्फ। रट के जाओगे तो भाई पेपर के बाद मुझे ही गाली दोगे। So my step 1 should be, I have to multiply a into c so that I will get something. Okay, whatever the thing I will get, let's say ac मिलेगा यहाँ से। Step 2, I have to break this ac in such a way, so that the sum of these two value is equivalent to the value of, like or you can simply say coefficient of x। तो यहाँ से मुझे मिल गया let's say x and y। यार x नहीं, कि x तो वहाँ भी है, l and m। Okay, so from here you will get lm। So in my step 3, also remember the L plus M should must be equal to B. This is the key and important thing. Step 3, step 3 is here whatever value you will get, let's say you will get L, you will get M. Now simply what you have to do, you have to divide it by the sign of this value or coefficient of x square. Let's say the coefficient, or simply you have to divide it by coefficient of x. This is our step 3. Now step 4, change the sign. This is the step where you have to change the sign। जो भी आएगा आंसर उसका साइन, मतलब इसका साइन चेंज कर दो, इसका साइन चेंज कर दो, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। होप इट इज गॉट इट। अब ये क्या बताया मैंने, वो क्वेश्चन पे करते हैं सॉल्व, समझ में आ जाए क्या बताया। फर्स्ट वन वाज इजी, तुम भी कर लोगे, कोई भी कर लेंगे। तो सेकंड से करते हैं। 3x² माइनस 11x माइनस 4 is equal to 0. Follow the steps. In my step 1, what I have to do? I have to simply multiply 3 into minus 4. I'm following my steps. This is nothing but minus 12. ठीक है, स्टेप 1 डन। मुझे स्टेप 2 में क्या करना है, -12 को आई हैव टू ब्रेक इन सच अ वे सो दैट द सम शुड बी इक्वल टू -11। तो कैसे ब्रेक करोगे? आई कुड सिंपली से 12 1 are 12, right? 12 1 are 12, and here because I need -11, so what I can do, I can simply give this sign to the bigger number. This is -12. Now from here I will get -12 plus 1. If you solve this, you will get what? -11, which is equivalent to this। होप इट इज क्लियर। दिख रहा है इक्विवेलेंट हो गया? अगर ये बन गया तो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप, स्टेप को रेड कलर कर दो तो आपको समझ में आ, ये नहीं था स्टेप। ओके, नाउ इन दिस स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, you have to simply divide the value or whatever you have found। this is a -12 or 1 you have find। ठीक है, इनको क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है किससे? a से। now in this step you simply have to divide -12 upon 3 and 1 upon 3। hope it is clear। next step, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू
-4, राइट गाइस? इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे -4. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट योर आंसर. व्हाट आई हैव सेड टू यू, यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ द वैल्यूज. जो भी आपने निकाला उसकी साइन क्या करना है, चेंज कर देना है. इन दिस स्टेप सिंपली चेंज द साइन ऑफ वैल्यू. तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये +4. ओके, माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया. ये प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स. दो वैल्यू एक्स की मिल गई, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू -1/3. और इट इज क्लियर. कितनी जनता को समझा, कितने को नहीं समझा? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? गॉट द पॉइंट? ओके, समझा है तो लेट्स सॉल्व द सेकेंड वन, सॉरी थर्ड वन. इसे सॉल्व करते हैं. एंड बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं है, आई वुड लाइक टू सॉल्व इट हियर. ठीक है, यहाँ कर लेते हैं. ऑल्सो दोज हु आर थिंकिंग कि यार ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्क्रीनशॉट ले लेना था, नो वरीज. मैं इसका रिकॉर्डिंग आपको, लाइक वी विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डिंग. यू कैन सिंपली गो टू द रिकॉर्डिंग and simply screenshot or make a notes. If you are making right now, then well and good. If you're not, simply take a screenshot and make a note in for future purpose. Okay, apart from this, if you like our work, you can simply what do, share with your friends and ask them to join if they are preparing for the same. Okay, और you can simply थोड़ा जाके यूट्यूब पे ही प्यार दिखा दो. अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर दिया करो यार, बाकी लोग तक पहुंचेगा, अच्छा लगेगा. See, you can see that there are lots of new people in today's class. I need more such people, a गुड वन जो पढ़ना चाहते हैं. नाउ सी हियर, इसे कैसे सॉल्व करना है? ये सॉल्व करना आता है ना, कि ये भी नहीं आता. थर्ड 10 -5/2. अंशु इज सेइंग -25. ओ भाई, व्हाट अ स्पीड. पता नहीं, बट दोनों में डाउट लग रहा है. इक्वेशन बोलना जरा, क्या आया? व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन? हैव यू सॉल्व दिस वन? ओके, नो वरी. जिसे नहीं है तो देख लो कैसे सॉल्व करना है इसको. यू कैन सिंपली व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे एक्स दिख रहा है, पहले एक्स से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई एक्स टू ऑल दिस टर्म, और यू कैन से दिस एक्सप्रेशन. यहाँ पे दूसरा वैल्यू क्या दिख रहा है, -6. तो -6 से पूरे इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, इफ यू मल्टीप्लाई इट हियर, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल गेट 2x² -3x -6 into 2x, how much, 12x. This minus into this minus, what I will get, minus into minus, I will get plus. 3 6 are 18 is equal to 68. Solving ahead, I will get 2x² minus minus plus sign बड़े नंबर का, that is a minus itself. So 3 minus 12, how much it is, -3 -12, it is 15x plus 18. ये 68 को यहाँ पे ला लो, इक्वल टू के बाजू में. ठीक है, इक्वल टू के बाजू में यहाँ पे भेज दो. तो आई विल गेट हियर -68 which is equal to 0. Now solving this, you will get the equation 2x² -15x. ये क्यों हैंग हो रहा है? ओके, माइनस. Now you can simply see plus 18 minus 68. तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, दैट इज माइनस इट सेल्फ. सो यहाँ पे देख लो कितना हो रहा है ये, 18 60 50 इज इक्वल टू 0. ओके, अगर आप लोगों के लाइक अंशु, निधि, आपका इक्वेशन तो सेम है, सिमिलर ही है, देन व्हाई योर आंसर्स आर डिफरेंट?
एक का 10 आ रहा है, एक का -5/2 आ रहा, why it is? Now I reach to this equation and this is what I have to solve. वो तो पहले ऐसे दिया हुआ था घुमाने के लिए, डराने के लिए। इससे मैंने क्या बनाया, इस इक्वेशन से मैंने ये बना लिया। And now I have to solve this equation. I have to follow the same steps. The first one is 2 into coefficient और इसका multiply करवा दो। Simply what I will get? I will get from here is -100. This is my first step. In my second step, I have to break down -100 in such a way such that I will get a -15 to be answer. So क्या कर सकता हूँ मैं? 25 ऐसा कर सकता हूँ। 25 is 100, right? 25 is 100. And because you can simply see, I need a minus sign here. अगर यहाँ पे मैं +15 बोलता तो आप क्या करते हैं? आप माइनस साइन छोटे नंबर को देते, प्लस साइन बड़े को देते हैं। बट बिकॉज यहाँ माइनस साइन है तो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस साइन बड़े नंबर को दूंगा और प्लस साइन छोटे को दूंगा। होप इट इज क्लियर। माइनस प्लस का खेल समझ में आया? और शुड आई रिपीट? नहीं समझा तो रिकॉर्डिंग देख लेना भाई, अब टाइम कम है वैसे भी। लेट्स गो अहेड। नाउ यू कैन सिंपली सी हियर, -20 + 5 you will get a -15 answer from here. Now step 3. Step 3 what you have to do, सिंपली -20 को डिवाइड कर दो a से। व्हाट इज a की वैल्यू है 2, एंड हियर 5 को डिवाइड कर दो 2 से। इन नेक्स्ट स्टेप, ओके, फ्रॉम हियर इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 10। अरे यार, बैड हैबिट्स में। ओके, यहाँ पे देखो, -20/2 अगर मैं करूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -10। तो सिंपली इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, बताएं कोई, जल्दी बताओ क्या करना है अब। लास्ट स्टेप क्या था, चेंज द साइन। द सिंपल स्टेप, यू हैव टू चेंज द साइन। सिंपली चेंज द साइन। 10 -10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10। This is the +5/2. Simply change the sign, -5/2. That's it. This is the answer. Value for x is 10 and -5/2. जिसका भी आंसर आया था, well and good, you are right. अंशु, your answer is incorrect. आपने यहाँ पे लाके छोड़ दिया। ठीक है, ये भी पूरा सॉल्व नहीं किया। तो फॉलो द स्टेप, यू विल गेट अ राइट आंसर। अच्छा, ओनली फैक्टर बताया क्या? चलो ठीक है, फिर ठीक है अंशु, नो वरी। Similarly, you can solve other question. I will share this PDF with you. Okay, you can simply solve the other questions. Let's come ahead and see this one. ट्राई करना चाहोगे? हैव अ ट्राई, लेट्स सी कितना क्या समझा है आपको, देखते हैं। डी 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 डी, चलो सबका डी आ रहा है। लेट्स सॉल्व दिस वन। लेट्स सॉल्व दिस, लेट्स सी if the answer is D or something else. So what the question saying? If one root of the equation, if one of the root of equation is also root of equation of this, ठीक है, मतलब one of the value of x in this equation is equal to one of the value of x in this equation, मतलब यहाँ के x का एक वैल्यू जो है वो इस वाले इक्वेशन के x का एक वैल्यू उसके इक्वल है। We don't know which one is equal or not, so they are asking what are the possible value for k, पॉसिबल वैल्यूज फॉर के कितने होंगे। सो लेट सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हियर। एक तरीका तो ये कर सकते हो। हाँ, मैंने और एक चीज नहीं बताया आपको, वो वो अब शायद लगता है आज नहीं बताना चाहिए। ओके, कल बताऊंगा मैं स्टार्टिंग में, जो नहीं बताया वो लेट इट बी फॉर नाउ, या फिर बता देना चाहिए। चलो सी, देर इज वन मोर बेसिक पार्ट जो मैंने नहीं बताया था, वो यहाँ पे कर लेते हैं। देर आर टू मोर थिंग विच आई फॉरगेट टू ऐड एंड विच आई एम टीचिंग यू हियर। तो जो है अभी तक बहुत अच्छा है। सम ऑफ द रूट
and product of the roots. Okay, sum of the roots and product of the roots. सम ऑफ द रूट्स होता क्या है? लेट्स से रूट्स, रूट्स जो होते हैं, रूट्स इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ एक्स, राइट? एंड वी कैन से इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितना पावर है उतने उसकी वैल्यू रहेंगी। ठीक है, एक्स का कितना पावर है? यहाँ पे स्क्वायर है तो देर इज टू वैल्यू ऑफ एक्स, तो देर इज टू वैल्यू ऑफ एक्स, इट मीन्स लेट्स से अल्फा एंड बीटा आर द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अल्फा एंड बीटा जो है ये है वैल्यू ऑफ एक्स, वन ऑफ द वैल्यू इज इक्वल टू अल्फा, वन ऑफ द वैल्यू इज इक्वल टू बीटा। तो sum of the roots is nothing but alpha plus beta. Similarly, from here, product of the roots is nothing but alpha into beta. Okay, and we know our general form of equation is nothing but ax square plus bx plus c is equal to 0. ये तो पता ही है सबको, पता है नहीं है? कहाँ चले जाते हो जनता? तुझे कभी कोई कंफ्यूज होती है, बच्चे जा कहाँ रहे हैं? आते सब पढ़ने हैं, चले कहाँ जाते हैं? ओके, सो नाउ ये अल्फा बीटा मुझे पता कैसे चलेगा? ये भी तो कोई पता करने का कोई तरीका होगा, कोई सीक्रेट होना चाहिए। तो यस, देयर इज वन वे टू फाइंड दिस वैल्यू। यू कैन सिंपली लाइक इसकी जो वैल्यू है ना अल्फा प्लस बीटा, इट इज नथिंग बट माइनस बी बाय ए। ठीक है, ये होता है इसका वैल्यू। अगर कोई सम ऑफ द रूट पूछा है, इसका मतलब क्या होता है? सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू अल्फा माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज नथिंग बट सी अपॉन ए। होप इट इज क्लियर। ये इंपॉर्टेंट था, नोट डाउन कर लो। ज्यादा चीजें नहीं है इसमें, लेकिन जो है वो इम्पोर्टेंट है, इससे ही काम हो सकता है। तो देर इज टू वे टू सॉल्व दिस इक्वेशन। द फर्स्ट वन इज सिंपल वन, you can directly find the value of x from here, and you can simply put that value here, you will get a value of k two time. Okay, so I'm going to solve using both method. One is this one, sum of the roots and product of the roots. Second one is जो मैं बता रहा हूँ आपको। So let's start. ये याद है ना? sum of the roots is nothing but minus b by a, product of the roots is c by a. Must remember this one, very important. I'm erasing from here. Screenshot, recording देख के ले लेना। Now see here, follow the same step for this equation. I have written this equation x square minus 11x plus 28 is equal to 0. From here, I have to find two values of x. So my first step is multiply coefficient into constant. So I will get 28. Second step is break down these in such way so that the number should be equal to minus 11. So 28 है, 28 is nothing but what? क्या बोल सकता हूँ मैं 28 के बारे में? 14 टू सा बोल सकता हूँ, 14 टू सा 28, एक तो ये बोल सकता हूँ, 7 4 सा 28 ये बोल सकता हूँ, राइट? बट 42 feasible भी है यहाँ पे। What I have to make? I have to make minus 11. If minus 11 I have to make, I will give it this minus sign to him and plus sign to him. But when you multiply this, अब ये मत बोलना कि माइनस साइन आपने बोला था हमने ऐसे कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे क्या 28 आ रहा है? नहीं, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? -28। सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट 7 एंड 4। नाउ हाउ टू गेट अ -11 नाउ? 7 4 तो ठीक है, चलो सर 7 4 तो ठीक है, -8 कैसे आएंगे? सॉरी, -11 कैसे आएगा? सो आई ऑल्सो नो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, राइट? माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, ये मुझे पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो मैं बोला चलो इसको ही माइनस दे दो, इसको ही माइनस दे दो, खत्म खेल, डन। सो what are the two values I got from here? I got -7 and -14, -7 and, sorry, -7 and -4. When you add these, you will get
minus 11. When you multiply it, you will get 28 plus wala. Next step, what you have to do in next step? Next step, simply divide it by the coefficient of x square, not x. From here you will get a minus 7 और ये हो गया minus 4. Now change the sign. If you change the sign, you will get 7 and 4. अब देखो ये अभी लग रहा है आपको बहुत लेंदी क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, बट आप खुद से सॉल्व करेंगे, यू विल गेट इट इन अ 1 मिनट. 1 मिनट तो ज्यादा बोलते हैं, 1 मिनट के अंडर में आ जाएगा. ठीक है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. So to find the value of k, what is the next equation? X square minus 8x plus k is equal to 0. From here you got a value of x, two values x, and x is equal to 4. I don't know which one is equal to the value of x from here. क्योंकि मुझे बोला है एक रूट इक्वल है, बट वी डोंट नो विच वन. दैट्स वाई हम दोनों सॉल्व करेंगे. फर्स्ट टाइम आई विल से लेट्स से x is equal to 7. In second one, I will simply say, let's say x is equal to 4. Now put the value of x in this equation, you will get value for k. If I put the value for of x, 7 square minus 8 into 7 plus k is equal to 0. Simply 7 7 is 49, 7 8 is 56, plus k is equal to 0. From here I will get simply k is equal to 7. Solve कर लेना, पता चल जाएगा कैसे 7 आया. From here, ओके जैसे मेरे पास 7 है, मैं यहाँ पे ऑप्शन बी तो एलिमिनेट कर दूंगा ना, क्योंकि के की वैल्यू तो 7 इसमें है ही नहीं. ये 3 है. नेक्स्ट वन, 4 square minus 8 into 4 plus k is equal to 0. 4 was a 16 minus 4 is a 32 plus k is equal to 0. From here, what I will get? The value for k is equal to 16. So answer for this question is option A. और सबका आंसर क्या आ रहा था? डी 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 डी. कैसे डी आ रहा भाई? ये सब मिलके पागल बना रहे हैं. अच्छा सा मीम है ना वो, थोड़ा सा वो अलग लैंग्वेज है, बोल भी नहीं सकते. इतना गलत कैसा हो सकता है कोई? 4 7 कैसे आ रहा है? अच्छा. अच्छा बहुत बढ़िया बच्चों, मौज कर दी. इसको मार्क कर दिया निकाल के, गजब. राइट. आपने इसको फाइंड किया और इसे डायरेक्ट यहाँ पे मार्क कर दिया. दैट्स व्हाई आंसर इज डी. दे द क्वेश्चन इज आस्किंग यू पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, नॉट द वैल्यू ऑफ एक्स. यस. तो देखो ऐसे गलती भी होती है. क्वेश्चन कितना भी इजी हो, लेकिन हम गलती कर देते हैं. इफ दिस मैटर इज क्लियर, शुड आई गो विथ अदर मेथड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को अदर मेथड से करते हैं. होप इट इज क्लियर गाइस. आगे बढ़ते हैं. थोड़ा टाइम लगेगा आज ज़्यादा. फर्स्ट सेशन है, बिकॉज हम बेसिक ज़्यादा कवर कर रहे थे. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बस. उसके बाद में 2 क्वेश्चन और लूंगा, देन दैट्स इट, वी विल पैक अप आवर बैग फॉर टुडे. इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, नाउ हियर सी दिस, सेम है, कंडीशन वाज इक्वल. इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज दिस. यार क्यों मैं मोमेंट, ये देखो, अगर इसका एक रूट इसके एक रूट के इक्वल है, अगेन पॉसिबल वैल्यू फॉर के, व्हाट यू कैन डू हियर? नाउ यू कैन सी के यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकता. मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ. क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन सेम ही है, बस आगे पीछे कर दिया 2 इक्वेशन को. यहाँ सबको एक्स की वैल्यू निकालना है, तो यू कैन यूज दिस अप्रोच ऑल्सो फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. एंड अनदर अप्रोच आई एम गोइंग टू यूज राइट नाउ. लेट्स सी which one is the another approach. Right now I have mentioned earlier that sum of the root something we have given. Okay, sum of the root, let's say simply sum of the root तक समझ में आ रहा है अगर आपको, तो अल्फा प्लस बीटा बोल देता हूँ मैं सीधा, is equivalent to nothing but minus b by a. Second was product of the root is equivalent to nothing but c by a. Right guys?
समझ रहा, b/a c/a। इससे कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, ये पूछ सकते हो आप लोग, अगर आपको इच्छा हो पूछने की तो। फ्रॉम हियर इफ आई से कि सम ऑफ द रूट्स है b/a, इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट कर लूँ, ये वाली इक्वेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसे यहाँ लिख लो तो बोलो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, -7x + 12 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली फ्रॉम हियर आई विल गेट सम ऑफ द रूट्स इज नथिंग बट -b/a की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो मिलेगी माइनस, एंड दिस माइनस साइन तो -7 अपॉन a की वैल्यू 1। फ्रॉम हियर आई विल गेट द वैल्यू फॉर दिस इज 7। सेकेंड फ्रॉम हियर द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यार मत करो, ये रहने दो, ये लंबा जाएगा, इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होगा। लेट इट बी सॉल्व इट इन अ टिपिकल वे जो मैंने पहले करवाया, वो इसमें एप्लीकेबल है, लेकिन बहुत लंबा जा रहा है, हमें इजी बनाना है। तो ये समझ में आए आपको तो बेटर है, इसके थ्रू करो। सो आंसर फॉर द क्वेश्चन डी बोल रहे हो कुछ लोग। लेट मी सॉल्व इट इन क्विक पे, मैं क्विक में कर लेता हूँ फट से। तो 12 है तो इसको मैं यहाँ पे कर लिया तो 2 6 है और 3 4 होगा। ओके, -3 -4, सो आंसर शुड बी 3 एंड 4। 3 4 आ गए, यहाँ पे 3 आपने डाल दिया तो यू विल गेट समथिंग अराउंड 3 × 3 27, -3 2 6 plus k is equal to 0. So from here you will get k's value is 21, not 21, -21. Second one is 4, 4 का 16, okay, क्या था 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 into 3 should be 48, 48 minus 4 to the 8, and plus k should be equal to 0. Now from here you will get the value for k is -40. Yeah, so option D is your answer. अब सही है डी, अब जिसका जिसका डी था सब सही है। ओके, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, ये वाला इजी है यहाँ पे। अब ये मैंने 2 स्टेप में कैसे कर दिया, क्योंकि मुझे अप्रोच आता है, मैं माइंड में सॉल्व कर पाता हूँ, दैट्स व्हाई आई वुड से इससे याद कर लो अप्रोच को। आप सिंपल वे में से लगा सकते हो, बहुत सी कैलकुलेशन आप माइंड में ही कर सकते हो। होप इट इज क्लियर गाइस, ये सेम है। नाउ यू कैन ट्राई इट, इज अ होमवर्क। लेट्स सी कितने लोग कर पाते हैं। ये होमवर्क है, करना कैसे है, इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स बोल रहा है मतलब क्या करना है, यहाँ से कुछ लगा सकते हो, डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इक्वल रूट से तो, राइट। हमारे डी इक्वल टू 0 कंडीशन क्या है, कंडीशन इज लाइक रियल एंड इक्वल। ठीक है, डी इक्वल टू 0, डी की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करोगे के की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगे, खत्म। सिमिलरली नेक्स्ट वन, ट्राई दिस वन ऑल्सो, ये भी सेम है, इक्वल रूट्स, ट्राई कर लेना। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन इज दिस इक्वल टू, ओके सिमिलरली यहाँ भी इक्वल रूट्स है, सेम मेथड, अप्रोच इज सिमिलर। ऑल्सो ट्राई हियर ऑल्सो डी इज इक्वल टू 0, ट्राई करो। कल देखेंगे, कल मतलब कल तो नहीं, कल संडे है, संडे इज अ फन डे, एंड और यू कैन से मॉक डे, मॉक अटेम्प्ट करना, ये भी कर लो, इजी है। ओके नाउ हियर यू कैन सी इट इज आस्किंग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज, सो एज आई टोल्ड यू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू फॉर दिस इज c/a, राइट। सम ऑफ द रूट्स इज गिवन, अल्फा प्लस बीटा इज गिवन इज इक्वल टू -1। चलो इसे अभी कर लेते हैं ट्राई। देखो यहाँ बताया क्या गया है, सम ऑफ द रूट्स फॉर दिस इक्वेशन इज -1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज माय क्वेश्चन। ना हियर यू कैन सी सम ऑफ द रूट्स होता क्या है, सम ऑफ द रूट्स ये भी तो होता है ना, -b/a, यही होता है ना सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, दिस इज इक्वल टू -1, this is equal to -1. Now if you solve this part,
यहाँ से दिख रहा है बी क्या है यहाँ पे? अरे यार, माइनस एज इट इज बी की वैल्यू क्या है आपकी? 2a+3 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू फॉर ए? यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? a+1 is equal to -1. This minus cancel. Now from here 2a+3 ये डिवाइड में है, यहाँ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में. So this is nothing but a+1. From here you will get a is equal to -2. ठीक है सर? और जो भी है, जो भी बैठ के देख रहे हो. Now here what they asking me, they are asking alpha into beta which is nothing but c by a. So c by a पूछ रहा है, इसकी वैल्यू मुझे निकालना है. तो यहाँ पे c क्या है? What is the c here? You can see this is my c here. C is nothing but 3a plus 4 upon what is a? A+1. Now simply you can put the value for a here. A की वैल्यू हमने निकाल चुके ऑलरेडी, -2. 3 into -2 plus 4 upon a की वैल्यू है -2 plus 1. Solve it. 3 2 are 6 plus 4 upon -1. Simply from here plus minus minus greater number की साइन, -2 upon -1. ये माइनस कैंसिल. आंसर इज 2. So answer for this question is option B, 2. Hope it is clear. समझ रहा, नहीं समझ रहा? Started with 11 people and now we are 7 left only. 7 including my screen. So 6 of us left. अलजेब्रा छोड़ के ऐसे ही भाग के लो. This is a very unique question and important one. ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको सीईटी में. If you are appearing for CET or any other OMETS exam you can say. But mostly सीईटी में ऐसे 6 7 क्वेश्चन मिलेंगे, हवा हवा. ठीक है? If you have appeared for CET, you must see this kind of question. 6 to 7 question of similar kind of thing. तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है? देखो, सबसे पहले तो the method is simple. You have to first find the value for this equation and value for this equation. तो चलो करते हैं. The first equation. What is my first equation? X square minus. मैं सीधे स्टेप पे जाता हूँ. I know this is my first equation. Solving this here. So my first step is what? 1 into -18. So I will get here from here -18. This is my step 1. Step 2, I have to break -18 into 2 such way so that I will get the equation which is equal to 3, and you can see here it is a +3. Break करो, कैसा होगा? 3 6 18, right? 3 6 18, because I want +3. यहाँ पे मुझे +3 चाहिए. मैं इसको प्लस साइन दूंगा, इसको माइनस साइन दूंगा. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई इट. +3 into minus, sorry, +6 into -3, you will get -18. When you add these two, you will get +3. Next step is simply +6 upon 1 and -3 upon 1. जो भी इसका कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर दो. नेक्स्ट स्टेप इज नाउ चेंज द साइन. यहाँ से आ जाएगा 6 और यहाँ से आ जाएगा -3. व्हेन यू चेंज द साइन यू विल गेट -6 and 3. होप इट इज क्लियर. अब इसे सॉल्व करते हैं, सेकंड इक्वेशन को. दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. ठीक है? नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस वन, अगेन स्टेप इज सिमिलर. फर्स्ट स्टेप वाज 2 into -36. देखो मैं साइन के साथ लाता हूँ. इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस है, तो कोई मुझे बोलना नहीं कि भाई क्या कर रहे हो तुम. दिस इज नथिंग बट -72. Now, in second step, I have to break -72 in such a way so that I will get this value is equal to -1. देखो यहाँ -1 मुझे बनाना है. I know 8 9 are 72, right? If I'm not wrong, 8 9 should be 72. I have to make it minus also. I have to make here minus also. तो मैं क्या करूँगा? बड़े नंबर को माइनस साइन दूंगा और छोटे को प्लस. नेक्स्ट स्टेप इज
डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, तो +8/2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, 2 हो गया, -9/2। लास्ट स्टेप, चेंज द साइन, यहाँ से मुझे 4 मिल जा रहा है। ओके, व्हेन आई चेंज द साइन आई विल गेट -4, and from here 9/2, and 9/2 is nothing but 4.5 if I'm not wrong। साइन चेंज हो गया, देख लो, ये प्लस था यहाँ पे आके माइनस हो गया, ये माइनस था यहाँ पे आके चेंज हो गया। फॉलोइंग द सेम स्टेप जो मैंने बताया है, ऐसा कुछ नहीं कि रैंडमली मैं कुछ नया कर रहा हूँ। अब क्या करना है, नाउ सी दिस। अब आपको कंपैरिजन करना है, वो आपको कंपैरिजन करना है एक्स और वाई की वैल्यू में। देखो, एक्स के मेरे वैल्यूज है वो -6 और 3 है, वाई के मेरे वैल्यूज जो है वो -4 और 4.5 है। व्हेन यू कंपेयर इट, यू कैन सी एक्स के जो मेरे दोनों वैल्यूज है, दोनों वैल्यूज नहीं बोल सकते, अगर मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ इसके साथ, तो ये कैसा है, बड़ा है या छोटा है इन दिस केस। या फिर ओवरऑल कंपैरिजन कर लो ना यार। देखो, ओवरऑल कंपैरिजन करोगे, ये एक्स की वैल्यू छोटी है, जब मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ तो ये एक्स की वैल्यू छोटी है, राइट। तो इन वन केस आई विल गेट एक्स शुड बी लेस देन वाई, इन सेकेंड केस आई एम गेटिंग वाई शुड बी ग्रेटर देन एक्स इफ आई सी दिस वैल्यू, राइट गाइस। तो मैं क्या एक कंक्लूजन पे आ पा रहा हूँ कि मेरी, am I able to conclude like the x is greater than y or y is greater than x? Do I am able to conclude it? Yes or no? नहीं कर पा रहा हूँ ना, मैं कंक्लूजन पे आ ही नहीं पा रहा हूँ। आई डोंट गेट अ कंक्लूजन कि भाई आंसर होना क्या चाहिए। तो अगर कंक्लूड नहीं कर पा रहा तो दैट्स व्हाई माय आंसर शुड बी ऑप्शन ई, द रिलेशनशिप कांट बी स्टैब्लिश्ड। अगर मैं कंक्लूड कर ले रहा हूँ कि एक्स, लेट्स से अगर ऐसा होता वहां पे, एक वैल्यू होती है एक्स की 6, दूसरी वैल्यू होती है 3, और y की जो एक वैल्यू है ऐसा होती है -4 और -2, इन दिस केस यू कैन सिंपली से x ऑलवेज ग्रेटर देन y। दिख रहा। सेकंड केस, इफ आई टुक वन मोर केस, लेट्स से x should be equal to 4 and 5, and y should be equal to 4 and -2, in this case you can simply say x should be equal greater than or equal to y, या तो इक्वल होगा या तो बड़ा होगा उससे। तो ये यहाँ पे कंक्लूड मतलब कंक्लूजन आ पा रहा है, बट इस केस में नहीं आ रहा। इस केस में देखो, यहाँ पे ये छोटा है, और इसके अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो ये छोटा हो जा रहा है, और इस चीज से कंपेयर करूँ तो ये बड़ा हो जा रहा है। एग्जैक्ट कंक्लूजन नहीं आ पा रहा है, दैट्स व्हाई माय आंसर शुड बी ऑप्शन ई, द रिलेशनशिप कांट बी स्टैब्लिश्ड। होप इट इज क्लियर। हाँ ना, कुछ बोल दो, टाइप कर दो। ओके, इफ इट इज क्लियर, these are some questions for your homework, you can solve it। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। शीट कहाँ पे मिलेंगी, हमारे चैनल्स पे मिल जाएंगी सारे शीट्स, सिमिलर क्वेश्चंस है। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग मोर। जो हमने आज प्रोडक्ट और सम वाला कॉन्सेप्ट छोड़ा है बीच में, उससे हम कल कंटिन्यू करेंगे, वहाँ पे उसके से रिलेटेड जो बहुत सारे क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड इफ यू हैव गाइस हैव एनी Q&A क्वेश्चन आंसर, यू कैन आस्क मी हियर, कुछ भी रिलेटेड हो डाउट पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू कैन लुक दिस ऑफरिंग्स, सिंपली विजिट prepbee.in। पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप चाहिए हो तो यू कैन लुक फॉर दिस प्लान्स। अपार्ट फ्रॉम दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर, 69 सीरीज मास्टर क्लास एंड क्वेश्चन बुकलेट, तो देख सकते हो ये प्लान को। ऑल्सो दोज आर वॉचिंग रिकॉर्डिंग, ज्वाइन आवर कम्युनिटी टू गेट दिस PDF एंड सॉल्व इट। बाकी अच्छा लगे काम तो लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, दैट विल बी इम्पोर्टेंट, उन्हें पता चले, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग बहुत से लोगों को पता नहीं है कि वी आर डूइंग सम दिस काइंड ऑफ थिंग एंड वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द कंप्लीट कोर्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिसे नहीं पता हो प्लीज उन्हें बता दो, एटलीस्ट उनका भला हो जाएगा। ओके, टिल देन, हैव अ गुड डे। जय श्री राम।